السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں پہ خوش رکھے۔ میں نے آپ لوگوں سے 3 سوال کیے تھے اور میں آج پھر 3 سوال کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ حضرت شیخ عبداللہ موصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا تو وہاں میں نے کیا دیکھا، ایک نوجوان ہے جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بار بار ایک ہی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ حضرت شیخ عبداللہ موصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں، یہاں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ تو بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ حضرت شیخ عبداللہ موصلی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ جوان کہتا ہے کہ اے عبداللہ، اگر تم اللہ کے نیک بندے نہ ہوتے تو میں یہ راز تمہیں کبھی نہیں بتاتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے 2 بھائی تھے اور وہ دونوں بھائی اتنے نیک اور متقی پرہیزگار تھے، میرے دونوں بھائی اتنے نیک متقی پرہیزگار تھے کہ ایک بھائی 40 سال تک فی سبیل اللہ کعبے میں اذان پڑھی، 40 سال تک اللہ کی رضا کے لیے کعبے میں اذان پڑھی، اور 40 سال تک نماز میں اس کی تکبیر اولیٰ بھی کبھی فوت نہیں ہوئی، اور 40 سال تک اس کی تہجد کی نماز بھی کبھی نہیں چھوٹی۔ اور دوسرا بھائی 30 سال تک فی سبیل اللہ، 30 سال تک فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے کعبے میں اذان پڑھی، اور 30 سال تک اس کی نماز میں بھی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی، اور 30 سال تک اس کی تہجد کی نماز بھی کبھی فوت نہیں ہوئی۔ لیکن جب وہ دونوں اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ قرآن شریف لاؤ۔ ہم نے قرآن شریف ان کے ہاتھ میں دیا، یہ سوچ کر کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، شاید دنیا سے جا رہے ہیں تو قرآن شریف پڑھتے پڑھتے جائیں گے، ہم نے یہ سوچ کر ان کے ہاتھ میں قرآن شریف دیا۔ لیکن جیسے ہی ان کے ہاتھ میں قرآن شریف دیا تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے معاذ اللہ وہ سب غلط ہے۔ ان بدبختوں نے یہ جملہ کہا اور یہ جملہ کہا کر مر گیا۔ وہ تیسرا چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ جن کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، ایک 30 سال تک اور ایک 40 سال تک فی سبیل اللہ کعبے میں اذان پڑھی، پھر وہ دونوں کفر کی حالت میں مرے۔ آخر وہ کفر کی حالت میں کیوں مرے؟ وہ کافر ہو کر کے کیوں مرا؟ وہ تیسرا چھوٹا بھائی کہتا ہے میں نے بہت غور کیا، تب پتہ چلا کہ میرے دونوں بھائی ہر معاملے میں نیک اور متقی پرہیزگار تھے، لیکن ان کی زندگی کے اندر ایک گناہ تھا، اور وہ گناہ یہ تھا کہ جب کوئی عورت ان کے قریب سے گزرتی تو وہ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، وہ عورتوں پر بدنظری کیا کرتے تھے، وہ عورتوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ بس یہی ایک گناہ تھا ان کی زندگی کے اندر، کہ جب وہ دنیا سے گئے تو کفر کی حالت میں اس دنیا سے گئے، جب وہ دنیا سے گئے تو کافر ہو کر کے اس دنیا سے گئے۔ تو اے مسلمانوں، انسان ساری زندگی اگر نیکیاں کرتا رہے لیکن مرتے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا گیا، مرتے وقت وہ کفر کی حالت میں مرا، تو یاد رکھو مسلمانوں، ساری زندگی اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جنت ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کسی کافروں کے لیے نہیں بنایا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جو عورتوں پر بدنظری کرتے ہیں، جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں، آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں،
आप अपनी निगाह से गंदी चीज को देखने के बजाय अच्छी चीज को देखा करें। आप अपनी निगाहों से अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखा करें, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं कि जो अपनी माँ और बाप का चेहरा मोहब्बत से देखेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा, उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। इंसान इतने सारे रुपए लगाकर हज करने जाते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि हज कबूल हुई है या नहीं हुई है। वो तो मरने के बाद ही पता चलेगा कि हज कबूल हुई है या नहीं हुई है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि जो अपनी माँ और बाप का चेहरा मोहब्बत से देखेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जो दिन में 100 मर्तबा अपनी माँ और बाप का चेहरा मोहब्बत से देखेगा उसको, मेरे आका फरमाते हैं जो दिन में 100 मर्तबा अपने माँ और बाप का चेहरा मोहब्बत से देखेगा, उसको 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। तो इसलिए ए मुसलमानों, आप अपनी निगाहों से गंदी चीज को देखने के बजाय अच्छी चीज को देखा करें। आप अपनी निगाहों से अपने माँ और बाप का चेहरा मोहब्बत से देखा करें। आप अपनी निगाहों से खानाए काबा को देखा करें। आप अपनी निगाहों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर को देखा करें। आप अपनी निगाहों से बाअमल उलमा का दीदार किया करें, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं कि जो औरतों पर बदनजरी करते हैं, जो औरतों को पाप की नज़र से देखते हैं, जो औरतों को गंदी नज़र से देखते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जहन्नम की सलाखें उसकी आंख में भरी जाएगी। क़यामत के दिन जहन्नम की आग उसके आंख में भरी जाएगी। बताइए मुसलमानों, बर्दाश्त कर लोगे? बर्दाश्त कर लोगे? अगर मिर्ची हमारे आंख में लग जाए तो हम कितने बेचैन बेकरार हो जाते हैं, हम कितने बेचैन बेकरार हो जाते हैं। मुसलमानों, हमारे आंख में मिर्ची लग जाए जब हम सुरमा पहनते हैं, तो हम कितने एहतियात करके सुरमा पहनते हैं। हमारे हाथ कांपते रहते हैं कि कहीं आंख के अंदर जो है वो गड़ न जाए। कितने एहतियात से पहनते हैं, हाथ कांपता रहता है। मुसलमानों, तो जब हमारे आंख में अगर मिर्ची लग जाए तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो जब क़यामत के दिन औरतों पर बदनज़री करने की वजह से, जब क़यामत के दिन औरतों को पाप की नज़र से देखने की वजह से अगर हमारी आँख में जहन्नम की आग भरी जाएगी, हमारी आँख में जहन्नम की सलाखें भरी जाएगी, तो हम उसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए ए मुसलमानों, आप अपनी निगाहों की हिफाज़त किया करें, आप अपने नज़रों की हिफाज़त किया करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों की निगाहों की हिफाज़त फरमाए। तो हज़रात, मैंने आप लोगों से 3 सवाल किए थे। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो मैंने क्या सवाल किया था? पहला सवाल था कि निकाह में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? तो देखिए, निकाह में 2 चीज़ें ये फ़र्ज़ है। निकाह में 2 चीज़ें फ़र्ज़ है। पहला, 2 गवाह का होना, ये फ़र्ज़ है। पहला 2 गवाह का होना और दूसरा इजाब व कबूल करना। निकाह में ये 2 चीज़ें फ़र्ज़ है। और दूसरा सवाल था निकाह में कितनी चीज़ें ये वाजिब है? तो देखिए, निकाह में एक चीज़ ये वाजिब है, महर अदा करना। निकाह में महर अदा करना ये वाजिब है। और बहुत सारे लोग अपनी बीवी से जबरन महर माफ़ करवाते हैं, ज़बरदस्ती माफ़ करवाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से महर अदा नहीं होगी। ज़बरदस्ती आप माफ़ कराते हैं, इस तरीके से महर अदा नहीं होगी। हाँ, अगर बीवी खुद से अगर माफ़ कर दे तो फिर ये अलग बात है। लेकिन ज़बरदस्ती अगर कोई माफ़ करवाता है, तो फिर इस तरीके से माफ़ नहीं होगी। तो निकाह में ये एक चीज़ ये वाजिब है।
और तीसरा सवाल था निकाह में कितनी चीजें ये सुन्नत है। तो देखिए निकाह में 3 चीजें ये सुन्नत है। निकाह में 3 चीजें ये सुन्नत है। पहला खुतबा पढ़ना, और दूसरा छुहारे तकसीम करना, छुहारे बांटना, और तीसरा दावती वलीमा करना। ये 3 चीजें निकाह में ये सुन्नत है। और मैं आज फिर आप लोगों से 3 सवाल कर रहा हूँ। पहला सवाल है कि औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका है। औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका है। और दूसरा सवाल है मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है। और मैं तीसरा सवाल कर रहा हूँ कि वो कौन सा गुनाह है जिसको करने से कयामत के दिन उसके आंख में जहन्नम का पिघलाया हुआ शीशा डाला जाएगा। वो कौन सा गुनाह है। इन तीनों सवालों का जवाब आपको कमेंट में लिखना है। आप लोग इन तीनों सवालों का जवाब कमेंट में सही सही लिखें। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में मैं सारे लोगों का नाम लूंगा, इसलिए आप लोग इसका जवाब सही सही कमेंट में लिखें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मुझसे अगर बोलने में किसी भी तरह की गलतियाँ हो गई हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा को कबूल फरमाए और मुझे माफ़ फरमाए। मुझसे बोलने में अगर किसी भी तरह की गलतियाँ हो गई हो तो आप लोग कमेंट में मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।